الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والعاملين والحمد لله رب العالمين. آئیے مولا بیت الکرام کے ساتھ ساری کائنات کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں محبت سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الکریم و علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لکھا ہوا میرے کفن پہ علی علی، یہ دیکھ کر فرشتے وہی گھومنے لگے. لکھا ہوا میرے کفن پہ علی علی، یہ دیکھ کر فرشتے وہی جھومنے لگے. پھر اس کے بعد اپنے سوالوں کو بھول کر ہمیں منکر نکیر میرا کفن جھومنے لگے. پھر اس کے بعد اپنے سوالوں کو بھول کر منکر نکیر میرا کفن چومنے لگے. شاید کہتا ہے کہ لہد میں علی کا چہرہ لہد میں اتر کے دیکھتے تھے. علی کا چہرہ لہد میں اتر کے دیکھتے تھے. ہمیں جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے تھے. علی کا چہرہ لہد میں اتر کے دیکھتے تھے. جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. اے چہرے علی کس قدر حسین ہے تو، اے چہرے علی کس قدر حسین ہے تو، تجھے تو آئینے بھی بن سور کے دیکھتے ہیں. تجھے تو آئینے بھی بن سور کے دیکھتے ہیں. حضرات آج کچھ لوگ کہتے ہیں میلاد پر اعتراض، سلام پر اعتراض، ہر چیز پر اعتراض ہوتا ہے. اللہ کے رسول کی قول سنو، میرے نبی نے کیا کہا؟ جو کام صحابی کرتے ہیں، جو کام صحابی کرتے ہیں. اچھا یہ بتاؤ، نبی موجود ہو اور جو کام صحابی کرے نبی منع نہ کرے، بتاؤ وہ کام جائز ہے کہ نہیں؟ اور جائز نہیں بلکہ باعث سے ثواب ہے، ورنہ نبی روک دیتے اور صحابی کرنے کی ضرورت نہ کرتے. آخر وہ کام کیا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا دراصل جو یہ کرتے ہیں وہ تم بھی کیا کرو. وہ کام کیا تھا؟ کام سنیں. میرے آقا ایک دن مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے تھے. مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے تھے. ایک گھر سے اندر سے آواز آ رہی تھی، اندر سے آواز آ رہی تھی. باپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دسترخوان پہ بیٹھا کر، کھانے کا دسترخوان لگا تھا. ماں ایک طرف، باپ ایک طرف، تمام بچے اس دسترخوان پہ بیٹھے تھے. باپ نے کہا اے میرے بچوں، میرے آقا روٹی اس طریقے توڑ کے کھاتے تھے. روٹی اس طریقے توڑ کے کھاتے تھے. بیٹے نے کہا اچھا اللہ کے رسول اس طریقے کھاتے تھے تو ہم بھی اس طریقے کھائیں گے، ہم بھی اسی طریقے کھائیں گے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر ٹھہر کر جب اپنے کان کو لگا کر گھر کے اندر سے آنے والی آواز کو سنا تو وہ صحابی اپنے بچوں کو سکھا رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی اس طریقے پیا کرتے تھے، کھانا اس طریقے کھایا کرتے تھے، دسترخوان پہ گرے ہوئے دیوالوں کو اس طریقے اٹھا کے کھاتے تھے. میرے آقا نے جب صحابہ کے بیچ میں بیٹھے تو کہا سنو، جو کام میرا وہ صحابی کرتا تھا وہی کام تم بھی کرو. اللہ تمہارے رزق بھی برکت عطا فرمائے گا، تمہیں ذلت اور رسوائی سے بچائے گا. کام کیا تھا؟ دسترخوان پہ بیٹھ کر اپنے بچوں کو صرف سنت رسول سکھا رہے تھے. میرے نبی سنت کے مطابق دیکھیں، روٹی ہم بھی کھاتے ہیں. اگر ایک روٹی کے 3 ٹکڑے کر لیا جائے اور ایک بڑا پیمانہ کھایا جائے پھر بھی پیٹ میں جائے گا. اسی کو 4 ٹکڑے کر لیا جائے اور یہ سوچ کر کہ ایک ٹکڑا ابو بکر صدیق کے نام پر، ایک ٹکڑا حضرت عمر کے نام پر، ایک ٹکڑا حضرت عثمان غنی کے نام پر، ایک ٹکڑا مولا کائنات کے نام پر، اور پھر پوری روٹی اس نیت سے کھائی جائے کہ اللہ کے رسول کے 4 صحابی ہیں، روٹی کے 4 ٹکڑے کریں گے اور ہر ٹکڑے کے 4 ٹکڑے کر کے کھائیں گے. میرے آقا فرماتے ہیں کچھ ٹکڑوں میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ صحابہ کے رزق میں سے اللہ کاٹ کر آپ کو رزق حلال عطا کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کو رزق دیتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے عمل تو چھوٹا ہے لیکن فائدہ بول رہا ہے.
कि सिर्फ सुन्नत पर अमल करे। सहाबा किराम, मेरे नबी ने फरमाया, अरे मेरे साथियों, जुमा का दिन मिल जाए, कभी अगर तुम्हें जुमा का दिन नसीब हो जाए तो ये काम कर लिया करो। अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने जुमा का दिन पा लिया। ये छोटी सी महफिल, आप इसको ये मत समझिए 5 मिनट की महफिल है, बख्शने के लिए एक अमल काफी है। अगर एक अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए तो हम सब जन्नती हो जाए। एक अमल काफी है, पूरी जिंदगी का अमल करने की जरूरत नहीं। और अगर अल्लाह की रफ्तारी पर मका पर आ जाए, सारी जिंदगी की नेकियां ऊपर लाद दी जाएगी और एक गुनाह जहन्नम में ले जाने के लिए पता ये चला एक अमल कबूल होने वाला है। तो जुम्मा के दिन जब कभी मुयस्सर हो, मेरे नबी फरमाते एक अमल अच्छा कर लिया करो, एक अमल अच्छा कर लिया करो, जानबूझ कर जो तुम्हें अच्छा लगे वो अमल कर लिया करो। सहाबी ने सोचा है क्या अमल करूं, तो हर आदमी अपने एतबार से अमल करता है, हर आदमी अपने अपने एतबार से। एक सहाबी के समझ में आया कि नबी ने कहा कि एक अच्छा अमल किया करो। अमल का मतलब एक नेकी किया करो जुम्मा के दिन, कम से कम एक नेकी, लास्ट में एक नेकी हर मुसलमान को करना चाहिए जुम्मा के दिन। अब तो सहाबी सोचे कि यार मैं क्या करूं, मैं तो गरीब हूं, पैसा है नहीं कि सदका कर दूं, पैसा है नहीं कि खाना खिला दूं, पैसा है नहीं कि किसी की इमदाद मदद कर दूं, मैं करूं तो क्या करूं, लेकिन एक नेकी करना है। अब वो सहाबी अपने घर से निकले तो घर में लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ था, छोटी सी लकड़ी पड़ी हुई थी। आने लगे तो घर से लेके आए, आने लगे तो घर से लेके आए और दिल में क्या सोचा, आज अमल करूंगा, अच्छा अमल करूंगा। आए और मस्जिद के दरवाजे पर उस लकड़ी को गाड़ दिया, जिसे हम लोग हिंदी भाषा में, अपने गवाही की भाषा में ये कहते हैं कि खूंटा, यानी आए और मस्जिद के दरवाजे पर खूंटा गाड़ दिया और सोचा का और दुआ किया था, अगर ये अमल अच्छा है तो तुम कबूल फरमा ले। खूंटा गाड़ा और अंदर चले आए, नमाज पढ़ने लगे। दूसरे साहब आए, उन्होंने भी सोचा कि मैं भी एक अमल करूंगा अच्छा। जैसे ही मस्जिद के दरवाजे पर आए तो देखा कि वो खूंटा गाड़े, उनको बुरा लगा, उन्होंने उस खूंटे को उखाड़ा और उखाड़ के फेंक दिया और सोचा बहुत अच्छा काम किया और मस्जिद में चले गए। आगे वो भी नमाज पढ़ने लगे। अब दोनों ने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के जब मस्जिद से बाहर निकले, जाहिर सी बात है जिसने गाड़ा होगा, अगर निकलने के बाद वो खूंटा वहां मौजूद होगा तो मूड खराब होगा कि नहीं, मूड खराब होगा कि नहीं। अगर लकड़ी हमने गाड़ा था और हमारी गाड़ी हुई लकड़ी आप उखाड़ के फेंक दो तो हमें बुरा लगेगा। और यही वजह है कि हम आपस में नमाजी में लड़ाई होती है। हम जो करते हैं आपके समझ में नहीं आता और आप जो करते हो मेरे समझ में नहीं आता। तो गाड़ने वाले ने अपनी मर्जी से गाड़ा था, उखाड़ने वाले ने अपनी मर्जी से उखाड़ा था। किसी ने न गाड़ने के लिए कहा था और न किसी ने उखाड़ने के लिए कहा, दोनों में लड़ाई होने लगी। कहा किसने उखाड़ा, तो आज का तो झूठे हैं, उस वक्त झूठ नहीं बोलते थे लोग। जिसने उखाड़ा था वो साहब कहते भाई हमने उखाड़ा है। तो दोनों में बहस हुई, तुमने मेरी गाड़ी हुई लकड़ी, मेरा गाड़ा हुआ खूंटा उखाड़ा क्यों? उसने कहा कि हमने उखाड़ दिया। दोनों में झगड़ा हुआ। कहा भाई हम लोग आपस में काहे लड़े, हम दोनों मुसलमान हैं, क्यों ना अल्लाह के रसूल से फैसला करवा ले। अल्लाह के रसूल हम आपस में क्यों लड़े, चले ना नबी की बारगाह में, चल के अल्लाह के रसूल से फैसला करवा ले। दोनों सहाबी आए, मेरे आका से अपने अपने हालात बयान किए। कहा या रसूल अल्लाह मैं घर से लकड़ी लेके आया, लाके खूंटा गाड़ा और इसने उखाड़ दिया। मेरे आका ने फरमाया पहले ही बताओ तुम गाड़े गए थे, तुमने गाड़ा क्यों था, गाड़ने की वजह बताओ। जैसे ही वो सहाबी ने सुना, कहा या रसूल अल्लाह, जब हम मस्जिद में आते हैं ना तो देखते हैं लोग खुशू और खुशू से नमाज नहीं पढ़ते, खुशू और खुशू से नमाज नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि वो लोग सवारी में सवार होकर आते थे, उस वक्त ऊंट वगैरह पे तो सवार होकर नमाज पढ़ के आते थे। आज भी अगर आप 50,000 की चप्पल पहन के आओ और मस्जिद के दरवाजे को उतार के मस्जिद में नमाज पढ़ने आओ तो नमाज में कब दिमाग लगेगा, चप्पल में ज्यादा लगेगा, कोई लेके भाग ना जाए। इसलिए वो सहाबी सोचने लगे कि लोग इतने महंगे ऊंट पर सवार होकर नमाज पढ़ने आते हैं तो ये नमाज तो कम पढ़ते हैं और इनका दिमाग ऊंट में लगा रहता है, मेरा ऊंट ना भाग जाए, मेरी सवारी ना भाग जाए, मेरा घोड़ा ना भाग जाए। इसलिए उन्होंने एक लकड़ी गाड़ दी कि आए और आराम से इसने अपना जानवर बांध दे और बांध के अल्लाह करे, खुशू के साथ नमाज पढ़े। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये अमल तो बहुत अच्छा है, ये अमल तो बहुत अच्छा है। अगर ये अमल तूने इस वजह से किया था तो मेरे आका फरमाते हैं कल बरोज़े क़यामत मैं मोहम्मद तेरा हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाऊंगा। वो साहब खुश हो गए। अच्छा जिसने उखाड़ा था वो तो खुश हो गए और जिसने उखाड़ा
दुश्मनी नहीं की। हम लोग आजकल आपस में जब नमाजी में लड़ाई होती है ना, तो बेवजह की लड़ाई, बेवजह का झगड़ा, मुक्तदी इमाम से जो है चल रहा है, और मुक्तदी से चल रहे हैं, पड़ोसी से चल रहा है, सुन्नी से चल रहा है। हाँ, तो कहने का मतलब कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से चल रहा है, लेकिन वहाँ ऐसा कोई मसला नहीं था प्यारे। मेरे आका ने फरमाया चाहिए बताओ तो बुखार में सही बात। उसने अपने काटने की वजह बता दी, और उस बुनियाद पर वो जन्नत में जाएगा। तुमने क्यों खाड़ा? तो वो साहबी डरते डरते बोले, कहा या रसूल अल्लाह, इस मस्जिद में नमाज पढ़ने खाली जवान नहीं आते हैं, बूढ़े भी आते हैं। या रसूल अल्लाह, इस मस्जिद में नमाज पढ़ने बूढ़े भी आते हैं, अंधे भी आते हैं, नाबीना भी आते हैं, जिन्हें कम दिखाई देता है। इसलिए या रसूल अल्लाह, मैंने सोचा किसी नाबीना का पैर इस खूंटे में ना लग जाए, जख्मी ना हो जाए, चोट ना लग जाए, इस बुनियाद पे हमने उखाड़ के फेंक दिया। मेरे आका फरमाते हैं ये अमल भी बहुत अच्छा है, इस बुनियाद पे तुझे उखाड़ने का सवाब मिला है। वो काल में जन्नत में जाएगा, तुम उखाड़ के जन्नत में जाओगे। कहने का मतलब यह है मेरे मुसलमान भाइयों, अगर एक लकड़ी दो सहाबी को जन्नती बना सकता है, तो क्या हमारा एक अमल हमें जन्नती नहीं बना सकता? और अगर ये दोनों अमल अच्छे हैं, अगर बात समझ में आई, एक लकड़ी दो लोगों को जन्नत में ले जा सकती है। मेरे आका फरमाते हैं ना हिंग लगे ना फिटके निरंग चोखा हो जाए, बगैर मुफ्त का इलाज। आप रास्ते से चले जाओ, कहीं कंकड़ पड़ा हो, पत्थर पड़ा हो, ये सोच के हटा दो कि कोई मुसलमान की गाड़ी इस पत्थर से न टकरा जाए, कोई मुसलमान को चोट न लग जाए, इस बुनियाद के रास्ते से पत्थर हटा दो। मेरे आका फरमाते हैं कल बरोज़े क़यामत